English Junctions chapters. Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channels English Junctions by JJ. Today I am going to explain you Class 6 first chapter Raglag's First Adventure. Before starting the explanation of this chapter, first I will give you a little bit intro about the author of this chapter. The author of this chapter is Ernest Thompson Seton. He was born in 1860 and that date is 1946 when he leaves this world. He was an English author, wildlife artist, and one of the founding pioneers of the Boy Scouts of America. His famous books about scouting includes the Birch Bark Rolls of the Woodcraft Indians, and it was published in 1906, and the Boy Scout and a Handbook was published in 1910. Seton was also an early pioneer of the modern schools of animal fiction writing. His most popular work being Wild Animals I Have Known. Wild Animals I Have Known is his most popular work, and this work is published in 1898. Today you will read in this chapter about a rabbit, Raglag, whose name is Raglax, and in this you will read about you can see in this picture also there's a rabbit, and it's a very beautiful story that today I'm going to tell you. In this you will read about a small rabbit whose name is a Raglag. Mostly they call them Rag, not a Raglag. Raglag is a very big name. No, they call that rabbit as a Rag, and that rabbit is you can see in picture also. Here it is a white color, very beautiful rabbit is there, and this rabbit is lived with his mother, and his mother name is Molly. So this is the little intro of this chapter. So now one day what happened when his mother was not at her home. So something happened with that rabbit, that we will read what happened, what situations that rabbit has to face, and what happened when his mother is not at her home. This we will read in this chapter. So now I am going to start the first line, which is written in your book. It is Raglax or Rag was the name of a young American cotton-tailed rabbit. मीन्स इज अ नेम, वो नाम है किसका, एक कॉटन टेल अमेरिकन रैबिट का. ही लिव्ड विथ हिज मदर मॉली इन अ स्वैम्प. स्वैम्प मीनिंग इज एन एरिया ऑफ लो लोइंग एंड अनकल्टिवेटेड ग्राउंड वेयर वाटर कलेक्ट्स. ऐसा जगह जहाँ पे ज़मीन थोड़ी धसी हुई हो और पानी कलेक्ट हो, मीन्स ऑल टोटली मॉइस्चर्ड एरिया. वहाँ पर वो रैबिट रैग जो है, जिसका नाम वो अपनी मॉम मॉली के साथ रहता था. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन हिज मदर वाज नॉट एट अ होम. सो टुडे वी विल रीड अबाउट कि वन डे व्हाट हैपेंड जब उसकी माँ मॉली रैग को घर पे अकेला छोड़कर चली गई. सो फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी इज द लॉन्ग स्वैम्प ग्रास बेंट ओवर and covered the closey nest where Raglag's mothers had hidden him. The long swamp's grass bent over. Long swamp's grass means लंबे लंबे घास वहाँ पर हैं, उगे हुए हैं घास. Cover the cozy nest. Cozy means होता है एक comfortable and warm, मतलब एक कंफर्टेबल एरिया. कोजी मीन्स कंफर्टेबल एरिया और गर्मी देने वाली एरिया, गर्म जगह पे उसका नेस्ट है, उसका घोंसला है, जहाँ पर रैग की माँ, रैग्स मदर्स हैड हिडन हिम, जहाँ पे रैग की माँ ने उसे रैग को छुपा कर रखा हुआ लंबे लंबे घासों के बीच में, और एक बहुत ही सेफ कंफर्टेबल एरिया बनाकर रैग को वहाँ पर छुपाया हुआ है. सी कवर्ड हिम पार्टली एंड वॉर्न्ड हिम. उसे आधा, पार्टली मीन्स आधा कवर करके, घास से कवर करके उसे क्या वॉर्न देती है उसकी माँ, स्टे एट होम एंड कीप वेरी क्वाइट टिल आई रिटर्न. स्टे एट होम, घर पर ही रहना, कीप वेरी क्वाइट, जब, और चुपचाप शांत रहना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ. दो Raglag was tucked in a bed. Though Raglag was tucked in a bed, he was wide awake, and his bright eyes looked at the little green world straight above him. Raglag को ऐसा लगा था जैसे कि वो बेड पे फंसा हुआ है, tucked, बेड पे पड़ा हुआ था, और ही वॉज अ वाइड अवेक, मतलब कि वो थोड़ा जगा था
वाइट, वो पूरी तरह से जगा हुआ था और उसकी ब्राइट चमकदार आंखें किसे देख रही थी? द लिटिल ग्रीन वर्ल्ड स्ट्रेट अबव हिम, जो हरा भरा घास और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर उसके सामने, उसके नेस्ट के सामने उसे दिख रहा था। उसे क्या दिख रहा था? अ ब्लू जे इज़ अ स्मॉल एंड ब्लू नॉर्थ अमेरिकन बर्ड। एक छोटी सी नॉर्थ अमेरिकन रेड कलर की बर्ड होती है, उसे ब्लू जे कहते हैं। उस बर्ड का नाम है ब्लू जे। And a red squirrel were loudly scolding. Now this is the second page. We have to move. Now the second page is there. A red squirrel were loudly scolding each other. Means in front of rag, what happened there? There is a blue jay, एक red American bird है, और एक blue jay है, and red squirrel है, जो loudly एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, डांट कर रहे हैं, जैसे कि ईच अदर्स एट वन टाइम, एक ही समय में। रैक्स, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, रैक्स होम ब्रुश वाज द सेंटर ऑफ देयर फाइट, और रैक का जो घर है उन दोनों के फाइटिंग के बीच में है। यू कैन सी इन अ पिक्चर ऑल्सो हियर, सी हियर, दिस इज द बर्ड and a squirrel. Their conversation is going on, and here this is a rag here in picture. rag जो है सेंटर में है उसका घर, इन सभी जो भी इनकी फाइटिंग हो रही है उसके सेंटर में है रैग का घर। सो रैग क्या देख रहा है? रैग क्या देखता है? a little yellow warbler caught a blue butterfly. A yellow warbler means a small yellow bird found in North Asia, Australia and Europe. एक छोटी येलो कलर की छोटी बर्ड होती है जो मोस्टली कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप में। दैट बर्ड नेम इज अ येलो वार्बलर। कॉट अ ब्लू बटरफ्लाई, उसने क्या किया है? कॉट किया है ब्लू बटरफ्लाई को, ओनली 6 इंच फ्रॉम हिज नोज, जो कि उसके नाक से सिर्फ 6 इंच के दूरी पर है। अ रेड एंड अ ब्लैक लेडी बग टुक अ लॉन्ग वॉक अप वन ग्रास ब्लेड। लेडी बग, रेड एंड ब्लैक लेडी बग, यू कैन ईजली सी द इंसेक्ट। मोस्टली बारिश के सीज़न में एक इंसेक्ट आता है छोटा सा रेड, उसका जो बैक होता है वो मोस्टली कछुए के जैसे रहता है, उसके बैक पे रेड और ब्लैक प्रिंटेड बॉबी प्रिंट के जैसा प्रिंट रहता है, उस तरह के इंसेक्ट को लेडी बग कहते हैं। वो लेडी बग क्या कर रहा है? टुक अ लॉन्ग वॉक वन ग्रास ब्लेड, वो वॉक कर रहा है, अनदर डाउन अनदर अक्रॉस द नेस्ट ओवर अ रैग फेस। तो लेडी बग क्या कर रहा है? वो वॉक कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है? उसके घर नेस्ट, रैग के नेस्ट के अगल बगल कर रहा है, इवन रैग के फेस के ऊपर भी कर रहा है। एंड येट ही नेवर मूव्ड इवन विंग्ड मीन्स हियर वो जरा सा भी मूव नहीं कर रहा। रैग को उससे प्रॉब्लम हो रही क्योंकि वो रैग के फेस पे ही बैठ रहा है। इवन विंग्ड मीन्स होता है रैग तेजी से अपनी आंखें ओपन एंड क्लोज कर रहा है, फिर भी वो जो लेडी बग है वो रैग के ऊपर से नहीं हट रहा है। नाउ व्हाट हैपन आफ्टर अ वाइल, द पैराग्राफ इज हियर। After a while, he heard a strange crackling in the bushes. थोड़ी ही देर बाद वो क्या देखता है? स्ट्रेंज क्रैकलिंग इन अ बुशेस मीन्स जो झाड़ियाँ हैं उससे एक अजीब तरह की क्रैकलिंग मीन्स आवाज़ आ रही है, क्रैकर्स टाइप की अजीब सी, वैसे कोई वहाँ से आ रहा हो, इस तरह की आवाज़ आ रही है। इट वॉज एन ओड कॉन्टिन्यूस साउंड एंड देयर वॉज अ नो पैटर ऑफ अ फीट विथ इट। पैटर, वी कैन से पैटर, द टैपिंग नॉइज ऑफ अ फीट। जब हम चलते हैं तो पैरों में से एक टैप की आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है हमारे चलने की, वो आवाज़ तक नहीं आ रही थी। ये एक स्ट्रेंज क्रैकलिंग था और ये बहुत ही ऑड था, जो कि कॉन्टीन्यूअस साउंड आ रही थी किसी के आने की, लेकिन पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रैग हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर। रैग ने इस तरह की आवाज़ पहले कभी भी नहीं सुनी थी। हिज मदर हैड वॉर्न हिम टू लाई लो। उसकी मदर ने, मॉली ने उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिया था? वॉर्न भी किया था। टू लाई लो मीन्स टू हाइड इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम
डेंजर मीन्स अगर तुम्हें किसी चीज़ की अजीब तरह की स्ट्रेंज आवाज़ अगर सुनाई देती है, टू लाई लो मीन्स टू हाइड इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर्स मीन्स अगर तुम्हें एहसास हो रहा है कोई खतरा है, कोई स्ट्रेंज वॉइस है, तो तुम खुद को अपने नेस्ट में एकदम अंदर जाके छुप जाना। बट ही बिकेम वेरी क्यूरियस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था। मतलब कि क्यूरियस मीन्स किसी भी चीज़ को जानने की एक तीव्र इच्छा उसके अंदर आ गई थी कि कैसी आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। इस वजह से राग जो है इस मम्मा का, अपनी मॉम का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाया। Could this strange, now what Rag is thinking, here this line is, could this strange sound without a footstep be anything dangerous? What is thinking, thought Rag, Rag क्या सोचता है कि ऐसा अजीब सा साउंड, स्ट्रेंज साउंड जो है फुट स्टेप्स का कैसा है, कहीं कहाँ कोई ये कोई खतरे की तो नहीं बात है। नेक्स्ट लास्ट पैरा ऑफ दिस पेजेस, the low sound seems to move nearer than it went this way and that, बट देन इट सीम्स टू बी गोइंग अवे। उसे ऐसा लगा कि ये जो साउंड है थोड़ा कम हुआ, तो जब वो उस साउंड के और नियर जाता और पास जाता है, देन इट वेंट दिस वे, तब उसे लगा कि वो वहाँ से जैसे चला सा गया हो। एंड दैट तभी रैग को क्या लगता है कि उसे कुछ आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन अब आवाज़ काफ़ी स्लो हो चुकी है। एंड इट वेंट दिस वे एंड दैट, वो कहाँ चला गया, इधर गया उधर गया कहाँ। एंड बट देन इट सीम्स टू बी गोइंग अवे, अचानक से उसे लगा कि आवाज़ ही आना बंद हो गई। तब रैग ने क्या सोचा, रैग फेल्ट ही हैड टू फाइंड आउट व्हाट द साउंड वॉज। उसको ये चीज़ की पता लगाना होगा, उसे पता लगाना होगा कि आवाज़ कहाँ गई। स्लोली रेज्ड हिज रोली पोली बॉडी ऑन हिज शॉर्ट लेग्स। रोली पॉली मीन्स स्मॉल एंड राउंड एंड सॉफ्ट। उसकी बॉडी कैसी थी, राग की कैसी थी, छोटी थी, राउंड थी और काफ़ी सॉफ्ट थी। रोली पॉली बॉडी को, अपनी रोली पॉली बॉडी को वो ले वहाँ से निकालता है। एंड विथ हिज शॉर्ट लेग, छोटे छोटे उसके पाँव थे। लिफ्टेड हिज लिटिल राउंड हेड, छोटा सा अपना सर घुमाते हुए अपने नेस्ट से बाहर निकलता है। ओवर द कवरिंग ऑफ हिज नेस्ट पीप आउट इनटू द वुड, लेकिन अपने नेस्ट से बाहर निकलते हुए पीप आउट मीन्स वो झाँक कर देखता है पहले, जैसे हम कहीं जाने से पहले देखते हैं ना कि कहीं कोई है तो नहीं बाहर, जरा देख ले बाहर, कहीं कुछ हमें डाउट होता है, अपने टेरिस पे जा रहे हैं, हमें लगता है मंकी तो नहीं है टेरिस पे, तो पहले हम झाँकते हैं इधर उधर। तो पीप मीन्स झाँकना, वो अपने नेस्ट से अपने छोटे से हेड को, लिटिल राउंड हेड, राउंड जो है गोल गोल उसका प्यारा सा हेड है, उसको निकालते हुए नेट से, और वो वुड के पास से छुप के देखता है कि बाहर कहीं कोई है तो नहीं। देन व्हाट हैपन, वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेजेस। Here it is written, the sound stopped it as soon as he moved. जैसे ही वो मूव करता है उस आवाज़ की ओर कि कहाँ पे आवाज़ वो आ रही है, तभी वो साउंड जो है बंद हो जाती है। He could see nothing, उसे कुछ भी नहीं दिखता। So he took one step forward to get a better view. तो सोचता है क्यों ना वो आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और सोचता है कि थोड़ा अच्छे से बाहर निकल के देखता हूँ, अच्छे से देखने के लिए, बेटर व्यू के लिए। एंड इमीडिएटली फाउंड हिमसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ एनॉर्मस ब्लैक स्नेक, और अचानक से इमीडिएटली उसे क्या देखता है, खुद को, अपने आप को किसके सामने देखता है, एक इनॉर्मस ब्लैक स्नेक, बहुत बड़ा, इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, ब्लैक कलर के स्नेक, सांप के सामने खुद को पाता है। देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मैमी हेल्प मी मैमी। रैग स्क्रीम्ड इन अ टेरर, रैग जो है चिल्लाता है मैमी मैमी, डर के, स्क्रीम्ड इन अ टेरर मीन्स डर के मारे चिल्लाता है। टेरर मीन्स हियर फीलिंग ऑफ अ ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है, क्योंकि वो तो प्यारा सा छोटा सा रैग रहता है जो अचानक से उसे कुछ समझ में नहीं आता, और वो अपने आप को एक बड़े से स्नेक के सामने देखता है, तो डर के मारे चिल्लाता है मैमी मैमी हेल्प मी। द स्नेक्स डाटेड एट हिम, डाटेड मीन्स मूव सडनली एंड क्विकली, और स्नेक्स उसके सामने अचानक से चला आता है। ही ट्राइड टू रन अवे विद ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टनी लिम्स, मीन्स वो अपने छोटे छोटे हाथ पाँव से जितनी स्ट्रेंथ, जितनी ताकत लगा सकता है, पूरी ताकत के साथ वो वहाँ से, उस जगह से भागने की, रन अवे, भागने की कोशिश करता है। बट इन अ फ्लैश मीन्स वेरी क्विकली, द स्नेक हैड हिम बाई वन ईयर एंड स्क्रूड द बेबी बनी इन इट्स कॉइल। हियर स्क्रूड हैड हिम बाई वन ईयर मीन्स हेल्ड हिम टाइटली बाई द ईयर्स, उसे टाइटली
पकड़ लेता है उसके ईयर्स से, उसके कान से। स्क्रूड मीन्स गॉट ए टाइट होल्ड, बहुत screwed the baby bunny in his coil. Coil means the ring or a spirals that a snake forms by covering its body around an animals that it wants to kill. Means वो एक सर्किल के जैसा अपने कॉयल से बना लेता है स्नेक, और बेबी बनी को, बेबी रैक को अपने जो सर्किल बनाता है। स्नेक्स मोस्टली जब भी किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो एक वो सर्किल नुमा बना देते हैं। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर वो कैसे रैक को पकड़ा है। इन दिस पिक्चर देखिए, सर्किल के जैसा बना लिया है स्नेक ने अपने आप को, और वो काफ़ी टाइट किए जा रहा है उस सर्किल को, जिससे बेबी रैक को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, उसे काफ़ी डर लग रहा है। एंड देन अगेन द बेबी रैक स्टार्टेड कॉलिंग हिज मदर मैमी। अब चूँकि उस स्नेक की पकड़ काफ़ी टाइट हो गई है, वो बेबी रैक को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ में भी जो है बफरिंग आ गई है। मैमी मैमी ग्रैब्स पुअर लिटिल रैगलैक्स। पुअर लिटिल रैगलैक जो है, ग्रैब्स की मीनिंग होती है ब्रीथ डीपली एंड क्विकली थ्रू द माउथ बिकॉज ऑफ सरप्राइज और शॉक। उस सरप्राइज और शॉक जो उसे मिला, जो इससे मिला, रैगलैक को जो मिला अचानक से स्नेक आने के बाद, उसके बाद से उसके मुंह से मैमी मैमी करके आवाज़ आती है। और उसके बाद द लिटिल वन क्राइज वुड हैव स्टॉप्ड सून। द लिटिल वंस क्राइज मीन्स हियर, द लिटिल वन क्राइज मीन्स हियर द छोटे से जो रैग है उसकी जो रोना है वो जल्दी ही बंद हो गया, उसके रोने की आवाज़ क्यों। व्हेन द बाउंडिंग मीन्स वॉकिंग और रनिंग विथ लॉन्ग स्टेप, की बहुत जल्दी बहुत तेज़ कदमों से, स्ट्रेट एंड एज एन एरो, एक तीर की तरह अचानक से कौन आया, केम मैमी, उसकी माँ आ गई, रैग की माँ मॉली आ गई। सी वॉज नो लॉन्गर द शाई एंड हेल्पलेस लिटिल मॉली कॉटनटेल, चूँकि वो बिल्कुल भी डरी हुई या फिर हेल्पलेस महसूस नहीं कर रही थी। क्यों? बिकॉज मदर्स लव वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर डैट। माँ का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, किसी भी लेडी के लिए अगर उसका बच्चा तकलीफ़ में है तो उसके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ आ जाती है। इसलिए मॉली के अंदर, मॉली भी एक माँ के प्यार, मदर्स लव से जो स्ट्रेंथ होता है, अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर, द क्राइंग ऑफ अ बेबी हैड फिल्डेड हर विद द करेज ऑफ अ हीरो। और अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मॉली के अंदर एक करेज भर गया, जो जैसा कि करेज हम हीरोज़ में देखते हैं, हीरो जो कि कभी डिफीट नहीं होते हैं किसी भी विलन से। तो यहाँ विलन रैग है एंड हीरो मॉली है, रैग की मदर। तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई, इतनी पावर आ गई कि उसने उस स्नेक से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और बिल्कुल भी वो हेल्पलेस, असहाय महसूस नहीं कर रही थी। The next is Hope. He jumped over the snake as it tried to attack her. The first line is here, Hope. She jumps over the snake as it tried to attack her. वो अचानक से कूदती है किसके ऊपर? स्नेक के ऊपर, as it tried to attack her. उसे अटैक करने के लिए वैक आवाज़ आती है, वैक। सी स्ट्रक द स्नेक विथ हर शार्प क्लॉज, अपने पंजों से स्नेक को लगातार कॉन्टीन्यूसली वो मारने लगती है। इट वॉज सच अ हार्ड हिट, वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ स्नेक को मार रही थी। द स्नेक ट्विस्टेड इन अ पेन, और वो इतनी पावरफुल हो गई थी मॉली कि स्नेक को जब वो ट्विस्ट हुआ और उसे इतना ज़्यादा पेन हुआ, एंड हिस्ड विथ एंगर, कि वो गुस्से के मारे, जब स्नेक लोग फुंकार मारते हैं उसे हिस्ड कहते हैं, गुस्से के मारे उसे जो है फुंकार मारने लगा, अपने मुंह से टंग को बाहर निकाल के जो स्नेक फुंकार मारते हैं उसे हिस कहते हैं। वो मॉली के ऊपर काफ़ी गुस्से से, एग्रेसिवली देखने लगा। आफ्टरवर्ड व्हाट हैपेंड, मैमी लिटिल रैग क्राइड वीकली, बहुत बुरी तरह से लिटिल रैग जो है धीमे धीमे थका हुआ सा मैमी करके रो रहा था। मैमी लीव्ड अगेन एंड अगेन, और मैमी जो उसकी माँ थी उसने अगेन एंड अगेन लीव्ड किया, एंड स्ट्रक्ड हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द स्नेक्स लेट गो ऑफ द लिटिल वंस ईयर। और मैमी जो थी लगातार उसे मारती रही बहुत तेज़ी से, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रक्ड हार्डर, तब तक
मारती रही जब तक कि स्नेक जो है वहाँ से छोटे से लिटिल रैग की एक ईयर को छोड़ नहीं दिया. इट ट्राई टू बाइट मॉली इंस्टेड. इवन वो मॉली को भी काटना चाहता था, बट द स्नेक ओनली गॉट ए माउथ फुल ऑफ अ फर. लेकिन उस स्नेक के मुंह में कुछ भी नहीं आया सिवाय फर के. द स्नेक वॉज बिगिन टू लूज द बैटल. अब स्नेक जो है, अब ये बैटल, ये लड़ाई, ये वॉर जो है हारने लगा था. इट लूज ए टाइट होल्ड ऑन अ बेबी रैग. और जो कि उसकी पकड़ काफ़ी टाइट थी छोटे से बेबी रैग के ऊपर, वो अब ढीली पड़ने लगी थी. रैग wriggled out of a snake coil at once and ratted him into the braces. रैग अब स्नेक की पकड़ से अचानक से उसके कॉयल से, स्नेक जो घुमावदार कॉयल टाइट किया हुआ था रैग को, उससे अचानक से बाहर आ जाता है. एंड रैटेड अवे इनटू द बुशेस. वो झाड़ियों में चला जाता है. ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड टेरिबली फ्रिटेंड. वो उसकी सांसें काफ़ी तेज थी. ग्रैप्सिंग ऑफ एयर मीन्स आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब कि जब हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं उस तरह से वो सांस ले रहा था. और अब वो टेरिबली बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. फ्रिटेंड. ही हैड लॉस्ट बिट ऑफ हिज लेफ्ट ईयर. उसे थोड़ा सा जरा सी चोट लगी थी उसके लेफ्ट ईयर्स पे, बट ही वॉज अदरवाइज अनहर्टेड. लेकिन बाकी तरह से बाकी सब ठीक था. ओनली उसके लेफ्ट ईयर्स पे थोड़ा सा चोट लगी थी. वंस रैगलैग वॉज फ्री. एक बार रैगलैग जो है उस स्नेक के हाथों से छूट गया, स्नेक के चंगुल से निकल गया. मॉली हैड नो विश टू कीप अ फाइटिंग. अब मॉली की कोई भी इच्छा नहीं रह गई थी आगे फाइटिंग को कंटिन्यू करने की. शी होप्ड ओवर to where Rag was hiding while the snake slowly slithered away into the jungles. She hoped. वो कूद के रैगलैग के पास पर थी. रैग वॉज हाइडिंग, जहाँ पे रैग जाके छुपा रहता है. while the snake slowly slithered away into the jungle. जबकि स्नेक्स जो है वो भी अब धीरे से निकल के वहाँ से जंगल में चला जाता है. आर यू ऑल राइट रैग? शी आस्क्ड, फीलिंग वरीड. चिंता जताते हुए मॉली, शी मीन्स हियर मॉली उसकी माँ रैग से क्या पूछती, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी आई लेफ्ट द नेस्ट मैमी. तो रैग क्या बोलता है? रिप्लाइड लिटिल रैग. क्या रिप्लाई करता है? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो माँ. आई लेफ्ट द नेस्ट. क्योंकि उसकी माँ ने इंस्ट्रक्शन दिया था तुम जो हो नेस्ट को छोड़ के नहीं निकलना, लेकिन वो फिर भी निकला अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, इसलिए वो सॉरी बोलता है. आई एम सॉरी आई लेफ्ट द नेस्ट मैमी. आई एम ग्लैड यू आर नॉट हर्ट. नाउ कम फॉलो मी, सेड मॉली जेंटली. मॉली जेंटली मीन्स बहुत प्यार से बोलती है. आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं, यू आर नॉट हर्ट, तुम्हें चोट नहीं लगी. नाउ कम, सो के जो हो गया सो हो गया, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ. Afterward, then the giant leap, Molly disappear into the woods. एक बहुत giant leap means बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए मॉली अचानक से गायब हो जाती है. कहाँ? into the woods, जहाँ पे उसका घर रहता है. Raglag followed the shining beacons of her snow white tail until she led him to a safer corner of the swamp. Now what happened here? Then Raglag followed the shining beacon. Beacon means a light that works like a signal. मतलब कि मॉली को फॉलो करते हुए एक ऐसी लाइट, मतलब कि मॉली उसकी माँ उसके लिए एक लाइट की जैसे थी, जैसे कि एक अच्छा एक गुड साइन दिखता है उस तरह वो खुश हो जाता है. और बैकन मीन्स अपनी माँ का पीछा करता हुआ. स्नो वाइट टेल, उसकी माँ का जो इतना स्नो एकदम सफ़ेद सा प्यारा सुंदर सा टेल था, उसको देखते हुए पीछा करते हुए रैगलैग भी अपनी माँ के पीछे चला जाता है. अंटिल सी लेड हिम टू सेफ अ कॉर्नर ऑफ द स्वैम्प. जब तक कि उसकी माँ उसे एक स्वैम्प जो उनका घर रहता है उसमें एक सेफ जगह पर नहीं पहुँचा देती है. तो अडेप्टर फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल आई हैव नोन बाई E.T. स्टोरी. ये कहाँ से लिया गया है? E.T. सेटन जो ऑथर है उनकी एक बुक है वाइल्ड एनिमल आई हैव नो. इस बुक में से इस चैप्टर्स उस बुक में से कुछ पार्ट लिया गया है इस चैप्टर को बनाने के लिए. एंड तभी ये चैप्टर बना है. होप दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. होप यू एंजॉय. Thank you. Hope you enjoy the explanation of this chapter, Class 6 Raglag first adventure. If you understand the explanations, please like my video, do comment in a comment box and subscribe my video. Thank you.